Good morning, students. Welcome to the second part of the lesson 1, class 12 English core. The name of the lesson is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet, presented by SKJN PGT English JNB Katni MP. So, we have been reading that MML was in class. French reached late in class and he saw many things different in the school that day. So let's continue reading and understanding. But nothing happened. MML saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, MML mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. My last lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking words X or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now that I could not give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Poor man! It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. So, students, let's try to understand these lines. And so, I jumped over the bench. So, French entered the class. He jumped over his bench and sat down at his place at his desk. Not till then, when I had got a little over my fright. So, after some time, when he got relaxed, when he became normal, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. So, French saw that the teacher was now today in different dress than usual he wore. So, ये आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंच क्लास में अंदर एंटर हुआ और बेंच पे जंप करके पहुंचा और अपनी डेस्क पे बैठ गया। और जब वह अपने डर से थोड़ा सा फ्री हुआ, रिलैक्स हुआ, तब उसने नोटिस किया कि आज टीचर ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है और फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड यानी एम्ब्रॉयडर्ड और डेकोरेटेड शर्ट पहनी हुई है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटा काला सिल्क कैप भी पहना हुआ है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, वो पूरी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है, उसमें कढ़ाई की गई है, वर्क किया गया है नीडल और थ्रेड के जरिए। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। तो ये जो ड्रेस है, ये कैप और ये फ्रिल्ड शर्ट और ये कोट,
ये वो इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज पे पहनते थे, सामान्य दिनों में नहीं पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल आज स्ट्रेंज और सोलेम यानी गंभीर और स्ट्रेंज यानी हटकर अजीब लग रहा था, रोज़ की तरह नहीं लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, और सबसे ज़्यादा चीज़ जो फ्रेंच को सरप्राइज़ कर रही थी, आश्चर्य कर रही थी, वो ये थी कि बैक बेंचेस जो कि जनरली खाली रहती थी, विलेज पीपल उस पर उन बेंचों पे बैठे हुए थे, हमारी तरह स्टूडेंट्स की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। जैसे कौन कौन बैठा, ओल्ड हाउजर बैठा हुआ है और वह 3 कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ है, फार्मर मेयर बैठे हुए हैं, फार्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं, फार्मर यानी पूर्व जो पहले मेयर रह चुके हैं, जो पहले पोस्ट मास्टर रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और दूसरे अन्य गांव वाले भी बैठे थे, विलेजर्स बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास था। हाउजर जो ओल्ड हाउजर थे वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लेके आए थे, एक प्राइमरी क्लास की बुक लेके आए थे जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स लिखे थे। थम्ड एट द एजेस, जो किनारे से मुड़ी हुई थी कोनों से, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर वह प्राइमरी क्लास की बुक रखे हुए थे और अपना बड़ा सा चश्मा उसी बुक के पेजेस पर रखे हुए थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एमएमएल माउंटेड हिज चेयर, तो एमएमएल उसी समय अपनी चेयर से उठ खड़े हुए और गंभीरतापूर्वक, जेंटल तरीके से, विनम्र नम्र तरीके से, गंभीरता से बोले कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, प्यारे बच्चों ये अंतिम पाठ आज मेरे द्वारा यहाँ पढ़ाया जाएगा। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अल्सेक और लॉरेन ज़िले के सभी स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। सो दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनें। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, बी वेरी केयरफुल, लिसन वेरी केयरफुली। बट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, तो ये जो वर्ड्स थे एमएमएल के, ये फ्रेंच के लिए थंडर क्लैप की तरह थे, बिजली की कड़क की आवाज़ की तरह थे। ओ द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल, तो यह उन्होंने टाउन हॉल पे लिखा है। ये टाउन हॉल पे जो बुलेटिन बोर्ड है उसमें जो नोटिस लगी है उसमें यही सब लिखा है। अब फ्रेंच को समझ में आया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन था। और वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता अच्छे से फ्रेंच भाषा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं कुछ और सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मेरी फ्रेंच भाषा की पढ़ाई यहीं पे रुक जाएगी। हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग वर्ड्स एक्स, तो आज फ्रेंच को बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत दुखी था कि उसने फ्रेंच लेसन्स को, अपने लेसन्स को अच्छे से नहीं पढ़ा और वह पढ़ने के बजाय पक्षियों के अंडे खोजना, गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार यानी फिसल पट्टी पे फिसलने जाना, माई बुक्स, तो अभी तक उसको जो बुक्स सच अ न्यूसेंस, एक बर्डन, बोझ, अप्रिय वस्तुएं लगती थी, न्यूसेंस लगती थी। सो हैवी टू कैरी, जो भारी लगती थी ले जाने में। माई ग्रामर, जो उसकी ग्रामर की बुक थी। माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स की जो बुक थी। अब ये पुस्तकें उसको ओल्ड फ्रेंड्स लगने लगीं जिनको वह त्याग नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। एंड एमएमएल टू, एमएमएल भी उसको प्रिय लगने लगे। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, तो जब फ्रेंच को एहसास हुआ कि एमएमएल जा रहे हैं और उनको कभी नहीं मिल पाएगा, न देख पाएगा, इससे वह उनके आयरन रूलर के बारे में, पनिशमेंट के बारे में, उनकी क्रैंकी नेचर के बारे में भूल गया और सोच रहा था कि वह भी बेचारे कितना मजबूर महसूस कर रहे हैं कि इसी लास्ट लेसन के ऑनर में उन्होंने अपने फाइन संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं और वो समझ गए कि आज विलेज एल्डर्स पीछे वाली डेस्क पे क्यों बैठे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट में। कीप लर्निंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग इन योर कॉपीज, keep making notes and writing the meanings and also keep writing the answers of the questions. Thank you very much.